Jai Hind students, as we have decided, now we are going to start our notebook. What you have to take? You have to take English text notebook. English text notebook. Okay? I hope you have taken pencil and eraser in your hand. So here we are going to start. At first, we should complete the index, put the date in the appropriate column. Now this is unit 3 and chapter number 5, a smile. I hope you have written. Now as this is a poem, so what we will do? At first we have to write the poem. See, I have written it. Now this is your turn to write the poem. Write the poem from your textbook. This is your today's homework. So you can leave this page and you will do this as your homework. Don't forget to put the date. And now we are going to start the classwork. So here you have to write CW, then put the date. As we have already started the unit, when you will write the poem, then you will start the unit. Then you will write unit 3, chapter number 5, a smile. So there is no need to write again chapter number 5. You just start with new words. So as now I am doing, I have written new words for you and I am going to read it for you so that you can write nicely. The first word is wrinkle. WRINKLES. Wrinkles. The next one, secret. 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 Then hiding place. HIDINGPLACE. Hiding place. Then funny. FUNN or NNY. Funny. Then wonderful. 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 So these are new words. Now let us move to the next section, that is word meaning. The first one is wrinkle. Wrinkle means a slight line or fold in a cloth or a face. क्या होता है wrinkle का मतलब? Wrinkle का मतलब होता है एक छोटी सी लाइन या फोल्ड जो या तो कपड़े में हो और या फिर फेस पे हो, जिससे हमने क्या बोला था, सलवटें हैं तो कपड़े में और स्किन पे है तो झुर्रियाँ, फेस पे है तो उसे झुर्रियाँ बोलते हैं हिंदी में. द नेक्स्ट वन सीक्रेट. SECRET. सीक्रेट आप सबको मालूम है. नॉट नोन और नॉट सीन बाय अदर्स, जिसको किसी और ने न देखा हो न जाना हो, जिसे हम नहीं जानते हैं, जो छुपा हुआ है, दैट इज सीक्रेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइडिंग प्लेस. हाइडिंग प्लेस का मतलब अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज हिडन. एक ऐसी जगह जहाँ कोई या कोई चीज़, या तो कोई इंसान या तो कोई चीज़ छुपी हुई है. कोई एनिमल भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे कोई छुपा हुआ है उसे हम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं हाइडिंग प्लेस. द नेक्स्ट वन इज वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स वेरी गुड. वंडरफुल मीन्स वेरी गुड और एक्सट्रीमली गुड. द नेक्स्ट फनी. फनी मीन्स विच मेक्स यू लाफ.
कोई ऐसी चीज़ जो आपको हंसा देती है उसे हम फनी कहते हैं. नाउ we are going to start our worksheet, that is worksheet 5. As the chapter number is 5, that's why it is worksheet number 5. So let us start with question number 1. I have written the questions and now we will just mark the answers in it. Tick the correct answer. The first question is tick the correct answer. Let me read it for you. What makes everyone happy? ऐसा कौन है जो सबको खुश कर देता है? सीक्रेट, स्माइल और रिंकल. What is the correct answer? Yes, option B, that is smile. A smile makes everyone happy. Now the next one. A smile is quite a dash thing. A smile is quite a dash thing. Quite मतलब completely. तो स्माइल कैसी है कंप्लीटली? फनी थिंग. सो विच ऑप्शन इज दैट? फनी, सीक्रेट एंड सैड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो पुट द राइट ओवर देयर. नाउ द नेक्स्ट वन. वेयर कैन वी सी द रिंकल्स व्हेन समवन स्माइल्स? हमें कब कहाँ दिखाई देते हैं रिंकल्स जब कोई हंसता है? तो on face, on hand or on cloth? So the correct answer is on face, option A. Now the next. One smile can make dash sad, fun or two. According to the poem, one smile can make two. So which is the correct answer? That is option C. I hope you have written these MCQs. Now let us move to the second question, that is fill in the blanks. The first one is a smile makes everyone. क्या बना देती है स्माइल सबको? सैड और हैप्पी? Yes, the answer will be happy. So let us write. A smile makes everyone happy. Now the next one. A smile goes to a dash hiding place. तो कौन से हाइडिंग प्लेस पे जाती है वो? जो किसी को पता नहीं होता है. दैट इज सीक्रेट. कहाँ जाती है? कहाँ चली जाती है? सीक्रेट. सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे. सो लेट अस राइट डाउन. SECRET. सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. कहाँ चली जाती है? सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे. डन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. स्माइल रिंकल्स अप योर. किस पे रिंकल्स आ जाते हैं स्माइल की वजह से? क्लोथ पे या फेस पे? यस, फेस पे. दैट्स वाई योर फेस. FACE, फेस. नाउ द नेक्स्ट. स्माइल इज क्वाइट अ डैश थिंग. क्या पढ़ा था पोएम में हमने? स्माइल इज क्वाइट अ अनहैप्पी थिंग, बैड थिंग और फनी थिंग. Yes, smile is quite a funny thing. So what we will write? Funny. 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 Smile is quite a funny thing. Okay. Now let us move to question number 3. That is answer the following questions. The first one is what does a smile do? Smile क्या करती है? What does a smile do? Smile makes everyone happy. Smile सबको हंसा देती है ना, खुश कर देती है. That's why what will be the answer? Let us write. देखो आंसर का कुछ पार्ट हमें यही मिल जाएगा. A smile
डज नहीं आएगा क्योंकि मेक आएगा, और क्योंकि एस है, डज है तो मेक्स। अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी। लेट अस राइट। A smile makes everyone happy। सबको कैसा बना देती है स्माइल? खुश बना देती है, खुश कर देती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। Where does the smile go after smiling? जब स्माइल हमारे फेस पे आती है फिर वो चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे। कहाँ चली जाती है? सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे। सो लेट अस राइट द स्माइल यू कैन सी, यहीं से लिख रही हूँ, डज है तो गोज हो जाएगा। द स्माइल गोज अब कहाँ जाती है? टू अ सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। कहाँ चली जाती है? सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पे आफ्टर स्माइलिंग। आफ्टर स्माइलिंग। ओके, I hope you all have written. Now the next one. Why smile is a funny thing? Smile funny thing क्यों है? क्योंकि स्माइल क्या करती है? क्या ला देती है चेहरे पर? स्माइल के आने से चेहरे पर क्या आती है? रिंकल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रिंकल्स आ जाते हैं। That's why smile is a funny thing. So let us write. Smile is a funny thing. स्माइल कैसी होती है? फनी थिंग होती है। बिकॉज जब वाई पूछते हैं तब हम बिकॉज लगाते हैं, क्योंकि हमें रीज़न पूछा है। दैट्स वाई। बिकॉज इट किसके लिए आया है? स्माइल के लिए। रिंकल्स अप क्या करती है? चेहरे पर क्या ले आती है? रिंकल्स। रिंकल्स अप योर फेस। क्यों फनी थिंग है? क्योंकि स्माइल जो होती है वो चेहरे पर क्या ले आती है? रिंकल्स बना देती है। तो ऐसा लगता है जैसे हम ओल्ड मैन हो गए हैं या ओल्ड वुमन हो गए हैं, क्योंकि ओल्ड लेडी के, ओल्ड मैन के फेस पे क्या होते हैं? रिंकल्स होते हैं। और रिंकल्स क्या होते हैं? रिंकल्स आर टाइनी फोल्ड्स ऑफ द स्किन। हमारी स्किन के टाइनी फोल्ड्स होते हैं, क्योंकि जब एजेड हो जाते हैं ना, जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तब स्किन लूज हो जाती है और उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? रिंकल्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन? जब हम किसी को देखकर स्माइल करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली दैट पर्सन विल स्माइल बैक। वो जो सामने होगा ना, जिसको देखकर हम स्माइल करेंगे, वो हमें देखकर दोबारा स्माइल करेगा, और फिर क्या होगा? वो स्माइल टू बन जाएगी। लेकिन हम क्या लिखेंगे? कि वह पर्सन हमें देखकर स्माइल करेगा दोबारा हमारे सामने। सो लेट अस राइट। जब कभी क्वेश्चन में यू पूछा होता है तब हम वी लिखकर आंसर कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमें पूछा है ना, ये टीचर किसको पूछ रहे हैं? आपको पूछ रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते थे कि व्हेन यू स्माइल। हम टीचर को थोड़ी कहेंगे कि जब आप हंसोगे, हम कहेंगे व्हेन वी स्माइल, जब हम हंसेंगे। व्हेन वी स्माइल एट समवन।
The person smiles back. यानी हम हंसेंगे, हम स्माइल करेंगे तो वो भी हमें देखकर स्माइल करेगा. ओके. When we smile at someone, the person smiles back. वो वापस हमें देखकर हंसेगा. Now the next question is make sentences. The first word is smile. As I told you, we should try to use the same word. अब अगर स्माइल लिखा है तो हमें स्माइलिंग नहीं यूज़ करना चाहिए, स्माइल ही यूज़ करना चाहिए. ओके. और हम उसे अंडरलाइन भी करेंगे. सो जस्ट मेक वन सेंटेंस ऑफ स्माइल. अभी हमने पढ़े थे ना, तो उसी में से एक बना देते हैं. दैट अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी. हमारा आंसर भी हमें लर्न हो जाएगा और सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस राइट. A smile makes everyone happy. कैसा बना देती है सबको खुश. And underline this word because this you have used in your sentence. So a smile makes everyone happy. Now what is the next? The next word is secret. आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना सीक्रेट शेयर करते हैं? तो हम ऐसा ही कुछ लिख देते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ या करता हूँ. सो लेट अस राइट. I share my secret with my friend. You can even write with my mother, with my father, with my brother or sister, or with my parents, or with my teachers. Anything you can write. और आपका सेंटेंस नया हो जाएगा. I share my secret with my friend. Okay? You can write I share my secret with my mother or with my teacher. Anything you can write and you can change the sentence. And which is the word? That is secret. So let us underline. Okay? Now let us move to the next word. The next word is funny. फनी का मतलब जो हमारे चेहरे पर स्माइल ला दे, जो हमें हंसा दे. और ऐसा कौन होता है जो हमें जनरली हंसा देता है? जोकर, क्लाउन हमको हंसा देता है ना. तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट द क्लाउन वॉज मेकिंग फनी फेसेस. है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो क्लाउन था वो फनी फेसेस बना रहा था. सो लेट अस राइट डाउन दिस. The clown was making funny faces. Okay, and underline this word funny. Even आप चाहें तो अपनी पोयम का भी एक जो सेंटेंस है वो ले सकते हैं. That smile is a quite funny thing. Smile is a quite funny thing. ये भी आप ले सकते हैं. But I have used funny word in a new sentence. Now this is our 5th chapter. I hope now you are able to frame small sentences. अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस अपने आप फ्रेम करना सीखना चाहिए. ओके. तो जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तब आप अपने सेंटेंस बनाने की भी ट्राई करना. एक तो आपका क्या होमवर्क हुआ? पहले तो आपको पोएम कंप्लीटली लिखनी है. फिर ये वर्क तो आप करेंगे ही क्योंकि आप मेरे साथ भी करते हैं और कुछ लोग PDF देखकर भी करते हैं.
तो ये काम कंप्लीट तो करना ही है, लेकिन आर.एन.बी में आप क्या करेंगे, नए सेंटेंस खुद बनाने के लिए ट्राई करेंगे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिंकल. रिंकल, ओके. सो रिंकल्स का क्या सेंटेंस बना सकते हैं, दैट ग्रैंड मदर पे बनाते हैं. चलो, माई ग्रैंड मदर has a lot of मतलब बहुत सारे, a lot of wrinkles on her face. उनके चेहरे पर क्या है, बहुत सारे wrinkles हैं. What I have written, my grandmother has a lot of wrinkles on her face. And let us underline this word because we have used this one. Okay, so here we have finished our chapter. In this, today what we have done, it was very short chapter. Don't you think so? कितना छोटा सा चैप्टर था. ओके, यहाँ पर पहले आप पोएम लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है. दैट वुड बी योर होमवर्क. देन in today's CW, new words we have written, then word meaning, then we wrote worksheet 5. In that, question number 1 was tick the correct answer. Question number 2, fill in the blanks. Then question number 3 was answer the following questions. And question number 4 was make sentences. Okay, so I hope everybody has completed the notebook work. If you have not completed, if you were not able to write from the video, then also there is no need to worry. I will share the PDF on Saturday and you can complete the chapter. Students, in our next lecture, we will start our chapter number 6, that is a story. Now what you will do? You will try to read this story by yourself. एक बार रीडिंग खुद करने की कोशिश करेंगे. आप अपनी स्टोरी जो है उसे पढ़ना और उसके बाद में हम क्या करेंगे? Then I will read it for you. Then I will explain it for you. Okay? So till then, have a nice day. Have a good reading and enjoy your reading. Jai Hind everyone. Goodbye.